Ram Ram to everybody joining this session. We are at chapter 4, verse number 5 of Srimad Bhagavad Gita. Shri Bhagwan Vach Bahuni me vyatitani janmani tava Arjuna Tanyaham ved sarvani na tvam vetha parantapa Bahuni me vyatitani Bahuni me vyatitani janmani tav charjuna. So Lord Krishna is saying that Bahuni me vyatitani. I have passed many of the births. I have taken carnation previously many times. Janmani tav charjuna, and as well as you also have taken birth after birth many times. Tani aham vedi sarvani, all those in which I have incarnated one after other, I know all of them. Tani aham vedam sarvani na tvam veth parantapa, O scorcher of enemies. Parantapa, that means you scorch the enemies. ओ शत्रुओं का दमन करने वाले, ओ शत्रुओं को तपाने वाले अर्जुन. न त्वम वेत्थि, you do not know all those, you are only having knowledge of the current birth, but I am having knowledge of all. The literal meaning of this verse is the blessed Lord says that, O Arjuna, many lives of mine have passed, and so have yours. I know them all, but you do not know, O scorcher of enemies. Shri Krishna explained that merely because he is standing before Arjuna does not mean that he can be equated with human beings. That many times God descends on earth. यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानाय अधर्मस्य परित्राणाय च साधूनां संभवामि युगे युगे. So God is descending on earth many times. It does not mean that God can be equated to human beings. That God clarifies, the Lord Krishna is clarifying to Arjuna. Like the president of a country visits a jail, it does not mean that president can be equated to those persons behind the bars, those criminals. In the similar manner, God descends on earth, Lord descends on earth for our benefit, our welfare, and to show the righteous path. It does not mean that God should be equated to us. म्यूट कर लीजिए. We know that he is in the jail merely for inspection, like the president is in jail merely for inspection. In the similar manner, God comes to our earth for our benefit or for our welfare, and to show the religion, the righteous path. The individual soul and supreme soul have some similarities, that we both are Sat Chitanand. That means we both are eternal, we both are sentient, and we both are blissful. If the Lord is Sat, then we are Anusat. If the Lord is eternal, then we are spark eternal. यदि भगवान शाश्वत है, सत, सत का मतलब जो सदा रहने वाला, तो जो आत्मा है वो अणुसत है. यदि ईश्वर चित है, चेतन है, चेतनामयी है, तो हम अणुचित हैं, उसी का ही एक अंश है. और यदि वो आनंदमयी है, आनंद का सागर है, तो हम अणु आनंद है. वी बोथ आर सिमिलर इन सर्टन पैरामीटर्स. वी कैन कंपेयर अस विद गॉड, बट certainly there are certain differences. Like God is all pervading,
गॉड प्रिवेट्स ऑल, ईश्वर सभी जगह व्याप्त है, बट सोल इज ओनली बॉडी प्रिवेटिंग, बट अवर सोल प्रिवेट्स ओनली बॉडी, लेकिन हमारी आत्मा केवल हमारे शरीर में ही व्याप्त है. दैट इज गॉड इज ऑल पावरफुल, but soul is not having the power to liberate itself from Maya. ईश्वर सर्वशक्तिशाली है, लेकिन आत्मा इतनी शक्तिशाली भी नहीं है कि स्वयं को माया से अलग करके देख सके. In the similar manner, God is the creator of nature, while soul is the subject of these laws. ईश्वर विधाता है जिसने इस विधि को बनाया है, और इस विधि पर चलना एक विधान है. इसी शब्द को लेकर संविधान भी कहा गया है. विधि का मतलब कानून होता है, तो संविधान जिसमें सभी कानून लिखे हों, तो सबसे बड़ा संविधान किसका है? वो ईश्वर का है. सो वो उसको विधाता भी कहा गया है. विधि ने तेरी कथा लिखी है, आंसू में कलम डुबो, तेरा दर्द न जाने कोई, पिंजरे के पंछी रे, तेरा दर्द न जाने कोई. सो द लॉर्ड इज क्रिएटर ऑफ all laws, and we are abided by these laws. We are subjected to these laws. We are subjugated to these laws. So soul is the subject of these laws. आत्मा उन नियमों को मानने वाली है, जबकि उन नियमों को बनाने वाला विधाता है. विधान बनाने वाला विधाता है. God is upholder of entire creation, while soul is upheld by them. वो बनाने वाला है, निर्माता है, तो हम उसकी एक कृति मात्र हैं, उसका एक निर्माण है. God is all knowing, while the soul does not know completely even in one subject. ईश्वर omniscient है, सर्वज्ञाता है, जबकि हम किसी एक विषय पर भी बहुत सीमित नॉलेज रखते हैं, बहुत सीमित ज्ञान रखते हैं. Shri Krishna calls Arjun in this verse that Parantapa. What does it mean by Parantapa? Paramtapa, that means scorcher. इतना अधिक ताप, तुम अपने तेज से, ताप से शत्रुओं का दमन करने वाले हो. So here, why Shri Krishna is using this word to Arjuna? That means when you can scorch your enemies, then why this kind of ignorance is covering to you? यदि तुम अपने शत्रुओं का दमन कर सकते हो, तो तुम इस अज्ञानता को अपने आप क्यों नहीं हटा देते? तो भगवान यहाँ पर जिस समय जिस प्रकार के संबोधन का सही अर्थ होता है, उस श्लोक से तात्पर्य होता है, वैसा ही वो अर्जुन को संबोधित करते हैं. ऐसा गीता में जगह जगह देखा गया है. यहाँ उन्होंने अर्जुन को इसलिए परमतप कहा कि मैंने तुमको सांख्य योग के बारे में बताया अध्याय 2 में, और अब मैं कर्मयोग के बारे में बता रहा हूँ. तो हे अर्जुन, तुम अपनी अज्ञानता का त्याग करो, और जब तुम शत्रुओं को अपने तेज से तपा लेते हो, तो ये अज्ञानता तुमको क्यों ढक रही है? तुम इसे हटाओ. मैं ही हूँ जो इस संसार में समय समय पर अवतरित होता हूँ, और लोगों में करुणा करके अपनी ओर उनको उन्मुख कर लेता हूँ. Here it is meaning that the subduer of the enemies. He implies, Arjuna, you are a valiant warrior and you have slayed many powerful warriors. Now, how such kind of ignorance is appearing in your mind? You should subjugate it or slay it with your wisdom. Next verse is 4.06. अजोपि सन् व्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया. अजोपि, आई एम इटर्नल, बर्थलेस. अजो अपि, अज जिसका जन्म ना हो. सो आई एम अजन्मा. वन हु टेक्स बर्थ is certain to die. But God, the primary, the basic nature of God, that God is अजह, जन्म न लेने वाले हैं. सन अव्यय आत्मा. So though I am birthless and अव्यय आत्मा, I am imperishable. That means
मैं कभी भी कम नहीं होता हूँ, अव्यय। व्यय होने का मतलब है खत्म होना, खर्च होना। मैं जैसा हूँ वैसा ही रहता हूँ, आदि से अंत तक। आदि और अंत हमारे लिए हैं, ईश्वर के लिए कोई आदि और अंत भी नहीं है। सो आई एम अजह, मैं जन्म अजन्मा हूँ, मैं अव्यय हूँ, मैं खर्च नहीं होता हूँ। अव्यय आत्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन, एंड आई एम लॉर्ड ऑफ ऑल बींग्स, मैं सभी प्राणियों का ईश्वर हूँ। भूतानाम ईश्वरोपि, भूतानाम ईश्वरः अपि सन प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय, एंड इन दिस नेचर I adhishthaya situated. So in this prakriti, though this nature is one of the servant of Lord, then also Lord himself gets situated in this nature with हिज योग माया। भगवान अपनी योग माया से इस प्रकृति में खुद को अवतरित कर लेते हैं या प्रकटीकृत कर लेते हैं। सो गॉड मैनिफेस्ट मैनी अ टाइम्स वेन एवर इट इज डिजायर्ड और रिक्वायर्ड, देन गॉड मैनिफेस्ट विद योग माया एंड डिसेंड्स फॉर अस। अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए भगवान धरती पर आते हैं। प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवाम्य आत्ममाया। What does mean by आत्म माया? एक माया है और एक योग माया है। माया हम लोगों को, हमारी जो चेतना है उसको हमारी आत्मा है, उसके ऊपर माया का पर्दा है। आत्मा उस माया के पर्दे को नहीं हटा पाती, लेकिन जो योग माया है वो दिव्य माया है। भगवान यद्यपि इस प्रकृति में आते हैं और योग माया सिर्फ उनके भक्तों को भगवान से तो मिला देती है, लेकिन जो पापी हैं, जो अधर्मी हैं, वो ईश्वर की इस प्रकृति को नहीं देख पाते। सो द लिटरल मीनिंग इज, दो आई एम बर्थलेस अनडिकेइंग बाय नेचर एंड लॉर्ड ऑफ बीइंग्स, by subjugating my prakriti, by taking under control of my prakriti, my nature, I take birth by means of my योग माया। So मैं अपनी योग माया से अपनी प्रकृति को अपने नियंत्रण में कर कर पुनः पुनः अवतरित होता हूँ। Many people revolt at the idea of God who possess a form. Some are saying, कुछ कहते हैं वो आकार है, कुछ कहते हैं वो निराकार है। सो द पर्सन्स आर अंडर डिस्प्यूट सिंस लॉन्ग, कि ईश्वर साकार है, कुछ कहते हैं कि निराकार है। दे आर मोर कंफर्टेबल विद अ फॉर्मलेस गॉड एंड दे से नो, इट इज सुप्रीम दैट द गॉड इज फॉर्मलेस। बट it is an incomplete picture of God. If the God cannot take the form which we can take, then that means we are at some parallel power with God. यदि हम ये कह दें कि ईश्वर तो निराकार है और हम सब लोग देखो आकार ले रहे हैं, तो हमारी भी एक समानांतर सत्ता हो जाएगी। तो ऐसे में ईश्वर के पास एक जो एस्पेक्ट है, एक गुण है, वो उससे रहित हो जाएगा। इसका तात्पर्य है कि ईश्वर निराकार होते हुए भी जब चाहे किसी भी आकार में अवतरित हो सकता है। So why God is descending on God like an avatar? It is for their devotees, because we are more comfortable to surrender ourselves when God is in some form. Like gopis are surrendering themselves to Lord Krishna. So it is very easy to surrender themselves when God is in front of you. Otherwise, in a formless, डिवोशन डज नॉट अपीयर, भक्ति तो अवतरित नहीं होती, भक्ति तो उद्भूत नहीं होती है। अगर कोई ईश्वर का आकार ही ना हो, तो भक्त और भगवान के बीच में जो आकार है वो एक मदद करता है भक्त की। सो ये हमारा सहायक हो सकता है ईश्वर के चरणों में खुद को झुकाने के लिए। एरी मेरे भनक परी कानन में, मुरली बाज रही मधुबन में, दुधवा तो चूल्हे पे छोड़ो ललना पलनन मेरी, मेरे भनक परी कानन में, मुरली बाज रही मधुबन में,
उलट पुलट सिंगार बनायो, उलट पुलट सिंगार बनायो, नहीं देखो दर्पण मेरी मेरे भनक परी कानन में। सो सच इज काइंड ऑफ डिवोशन। गोपियां कैसे पीछे दौड़ जाती हैं। बिछुआ तो कानन में डार्यो, और पायल गर्दन में, एरी मेरे भनक परी कानन में, मुरली बाज रही है मधुबन में। लहंगा तो मैंने सर पे ओढ़्यो, और चुनरी कर धन में, एरी मेरे भनक परी कानन में। तो भगवान इस धरती पर अवतार लेते हैं, किस लिए? क्योंकि भक्त उनका साक्षात्कार कर सकें। साकार रूप भक्तों को अधिक प्रिय होता है, ये माध्यम होता है। यद्यपि भगवान निराकार हैं, लेकिन अपने भक्तों के लिए, अपने गोपियों के लिए इस प्रकार का रूप लेते हैं। नाउ God is definitely incorporeal and formless. So we are corpus. That means we are physical, we are material. But God is incorporeal. God is not having formless. But God take birth in various forms with his Yog Maya. But that does not mean that he cannot simultaneously have a form as well. Here it is the mentioned by gopis, उधव मन न बहे 10-20, एकय हुतो सो गयो श्याम संग, को अब राधे ईस। सो जब उद्धव भगवान कृष्ण के बारे में गोपियों को समझाने गए कि तुम इस प्रकार से व्यथित मत हो, भगवान तो निराकार है, तुम उसकी पूजा करो, क्यों तुम मथुरा से व्रज में भगवान कृष्ण को बुलाने की बात कह रही हो? तो वहाँ गोपियाँ कहती हैं, तो मेरे पास तो एक ही मन था, वो मैंने उस मधुसूदन को दे दिया है जिसने मधु नामक राक्षस की हत्या की। ऐसे भगवान कृष्ण को हमने दे दिया है, और मेरे पास तो कई मन नहीं है, हम उसी का आराधन करती हैं। सो इट इज कंफर्टेबल फॉर अस टू सरेंडर अवर सेल्फ विथ सम फॉर्म ऑफ गॉड। नाउ but that does not mean that he cannot simultaneously have a form as well, since God is all powerful. God is all. Now here it is said that God is all powerful. ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे, मम उर्सोवासी यह उपहासी, सुनत धीर मति थिर न रहे। Like Brahmand Nikaya, the group of the constellation of universe, Rome is situated in every pore of you. तुम्हारे हर एक रोए में ब्रह्मांडों के समूह हैं। निर्मित माया, और ऐसा तुमने अपनी माया के द्वारा बना रखा है। प्रतिवेद कहे, एंड एवरी वेद इज सेइंग सो। वेद कहता है कि तुम्हारे रोए में ब्रह्मांडों के समूह हैं, जबकि हर ब्रह्मांड में 50 खरब निहारिकाएं हैं। 50 खरब आकाश गंगाएं एक ब्रह्मांड में हैं, और उस हर एक आकाश गंगा में, निहारिका में 50 खरब सूर्य हैं। उन सूर्यों के चारों ओर कई पिंड चक्कर काटते रहते हैं, और उनके भी कई उपग्रह भी हैं। तो इस प्रकार की माया है आपकी। मम उर्सोबासी, वो मेरे हृदय में निवास करता है। सुनत धीर मति, ऐसा सुनकर तो धीर धैर्यवान लोगों की मति भी स्थिर नहीं रह पाती। सो सच इज द लॉर्ड, दो ही इज अनमैनिफेस्टेबल, बट गॉड मैनिफेस्ट फॉर अस, so that we are having a closer relationship. For those जो कच्चे साधक हैं, जो भगवान के मार्ग में चलना चाहते हैं, वे सीधे सीधे निराकार तक नहीं पहुंच सकते, तो उनको साकार का सहारा देने के लिए भगवान करुणा करके जन्म लेते हैं। वो अहेतु की कृपा करते हैं। दैट इज रीजनलेस ग्रेटिट्यूड। सो विदाउट किसी कारण से वे हम पर कृपा करने वाले हैं। So such is the Lord. God cannot have a form. It means that person does not accept him as all powerful. If we are thinking that God cannot have a form, but we can take the form, this is meaningless.
He is all powerful, so he may take. This nature is her, this Yog Maya is hers, so God can anytime subjugate this Maya, this nature, and take birth. Thus, to say God is formless is an incomplete statement. On other hand, to say God manifest in a personal form is also incomplete. ये एक पक्ष होता है यदि हम कहते हैं कि ईश्वर साकार है या निराकार है। जैसे स्त्री को हम एक पक्ष में देखें कि वो एक माँ है, तो ये सिर्फ उसका एक पक्ष है। कभी वो भार्या बन जाती है, कभी पुत्री बन जाती है। तो स्त्री के समय समय पर स्वधर्म के अनुसार कर्तव्य बदलते रहते हैं। उसी प्रकार भगवान जैसा जब चाहते हैं, चूंकि वो निराकार हैं, तो वो साकार भी हो सकते हैं। इन द सिमिलर मैनर आवर सोल when it dwells in the body, then it takes a shape. However, after our that death and till reincarnation, दूसरे जन्म के आने तक, till reincarnation, it is formless. In a similar manner, God is in form when it manifests in body. However, after a time, it remains unmanifested to all. So God has both aspects. God appears in both ways, as the formless Brahman and Brahma and the personal God. So formless Brahma is also God and personal God. So both can be equated. These are the two dimensions of his personality. In fact, the individual soul has these two dimensions. As it is discussed, we are alive in the form, but after death and till reincarnation, पुनर्जन्म के आने तक हम भी ऐसे ही ऊर्जा के रूप में भ्रमण करते रहते हैं जब तक हमारा नया जन्म नहीं हो जाता। इस प्रकार से आत्मा भी रहती है। The next verse is 4.07. यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, ओ भारत, ओ द scion of Bharat dynasty. Bharat was the very powerful king of that Kuru dynasty. Kuru was a king, and Bharat was also. On the name of Bharat itself, our country is named as Bharat. So that Kuru Vansh king, Bharat, the power, the fame of that king was that we are having our country as Bharat. So our country was extended up to Hindu Kush, Gandhar, to the far east and south. So such was the fame of Bharat. Now, so O Bharat, and the descendant of that dynasty was Arjun. That's why here Krishna is saying, O Bharat, that means you are a descendant of famous dynasty. तुम एक बहुत बड़े वंश के आगे आने वाली पीढ़ी हो। तो हे भारत, हे भरत वंशियों में श्रेष्ठ, हे भारत, यदा यदा ही धर्मस्य, whenever there is the decline, ग्लानिर्भवति, there is decline, यदा यदा ही धर्मस्य, whenever there is decline, ग्लानि means decline of righteousness, अभ्युत्थानाय, अभ्युत्थानम अधर्मस्य, and when there is increase in wrongdoership, increase, अभ्युत्थानम अधर्मस्य, तद आत्मानम, at that time I myself srajamyaham, I myself manifest myself with help of योग माया to subjugate nature. मैं प्रकृति को अपने वश में कर कर अपनी योग माया के द्वारा तब तब अवतार लेता हूं। The literal meaning of this verse is, O scion of Bharat dynasty, whenever righteousness is on decline, unrighteousness in the ascendant, then I body myself. Fourth,
Dharma is verily the prescribed actions that are conducive to our spiritual growth and progress. So, dharma is necessary for our spiritual growth. Everything it is said that with pious mind we should work something. पवित्र मन से हम कार्य करें, सो हम पवित्र वाणी बोलें. Whatever we say, it should be pious. Whatever we do, it should be pious. Whatever we earn, जो हम कमाते हैं, अर्जित करते हैं, वो पवित्र होना चाहिए. So in this way, it is said it is only dharma. The reverse of this is adharma. So reverse is adharma. When unrighteousness prevails, the creator and administrator of world intervenes by descending and restabilizing dharma. So जब जब धर्म की हानि होती है तब भगवान अवतार लेते हैं. यहाँ हमारे मन में कई इस प्रकार के प्रश्न उठ सकते हैं कि भगवान स्वयं क्यों अवतार लेते हैं. वो संतों के हृदय में रहते हैं, संतों के द्वारा ही संतों को भेजकर फ्रॉम हायर एबोर्ड, अपने ऊंचे धामों से संतों को भेजकर ही ये काम करवा सकते हैं. तो उनके अवतार लेने की क्या आवश्यकता है. सो हियर दिस क्वेश्चन अराइज इन माइंड्स ऑफ many. The word avatar here, that means when God himself comes to earth, then it is called avatar. Like Jay and Vijay, the two saints, the two Dwarpal at Swarga, God has sent them to just mimic as enemies or wrongdoers. भगवान ने जय और विजय को रावण और अहि रावण बनाकर भेजा. तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, वे भी संत हैं, तो उनसे ये कहा गया कि तुमको इस प्रकार की लीला करनी है, इस प्रकार का आयोजन करना है कि तुम भगवान के विरुद्ध हो. और भगवान यहाँ पर आते हैं एंड गॉड हिमसेल्फ पास टाइम्स टू किल देम so that their devotees may admire them, so that their devotees may have one more form of God, that our God is so powerful that he can kill him. So such is the thing. But on the other time, our God is much affectionate also. Ram has told to Angad, Ripusan kareu bat kahi soi, मोर काज ता सुहित हुई. हे अंगद, रावण के साथ तुम ऐसी बात करना कि मेरा काम हो जाए और उसका अहित भी ना हो. सो सच काइंड ऑफ स्केल गॉड रिप्रेजेंट्स टू ऑल कि हमें अपने शत्रुओं के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, शत्रुओं के साथ भी कितना प्रेम है राम का. सो सच इज द स्टैंडर्ड एंड स्केल गॉड गिव्स सो दैट देयर डिवोटीज मे एडमायर देम. इन दिस टेक्स्ट we are using this avatar word for the descendants of Lord Krishna or any form of Lord. Verse 4.08 परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे. परित्राणाय, to protect, sadhunam, the righteous person, vinashaya, that annihilate, duskritam, the unrighteous person, duskritam, the wicked person, dharma sansthapanarthaya, dharma sanstapna arthaya, for the establishment of dharma, that is the eternal religion, that religion which is eternal, which never dies. So what is the dharma? For soul to surrender, subjugate in the feet of God, to merge the soul to super soul, it is the only dharma. There is no other dharma. And how? When soul approaches to God, it is the dharma. So it is eternal dharma. शाश्वत धर्म क्या है? आत्मा का भगवान में, परमात्मा में विलीन हो जाना ही एकमात्र धर्म है, वो जैसे भी विलीन हो. दिस इज ओनली द धर्म. धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि, आई मैनिफेस्ट माई सेल्फ युगे युगे, in many forms, whenever, like Ram, Krishna, and in many forms. वेदों में 24 तरीके के भगवान के अवतार दिए गए हैं. भगवान इस तरीके से भगवान समय समय पर अपने को अवतरित करते रहते हैं. द लिटरल मीनिंग ऑफ दिस इज
for the protection of pious, the destruction of evildoers, and establishing virtue, I manifest myself in every age. Having stated in the last verse that God descends in world, he now states the three reasons. What are the reasons for which God takes birth? भगवान किन किन कारणों से अवतरित होते हैं? To annihilate the wicked, दुष्टों का विनाश करने के लिए, लुप्त करने के लिए. To protect the pious, पवित्र लोगों की रक्षा करने के लिए. To establish धर्म, धर्म के पुनर्संस्थापन के लिए. However, if we closely study these 3 points, none of 3 reasons seem very convincing. हम अगर इन्हें ध्यान से देखें तो हमें लगता है कि भगवान के अवतरित होने की तो कोई इसमें आवश्यकता नहीं है. To protect the righteous, God is seated in the hearts of devotees and always protect them from within. So what is the necessity to protect the righteous person? Because our body is ephemeral. हमारा शरीर तो नश्वर है और इसको तो संरक्षित करने की कोई आवश्यकता नहीं है. हमारा तो जन्म पुनर्जन्म कई ये चक्र तो चलता ही रहता है. तो भगवान ऐसा क्यों कहते हैं? Why Lord is saying that to protect the righteous we are reincarnating, manifesting myself on earth. So this reason is less convincing for some of us. To establish dharma, dharma is eternally as described in Veda. वेदों में तो धर्म को शाश्वत कहा गया है, वे हमेशा से रहने वाला है. So how God is re-establishing it when it is eternal? How God can re-establish it? He does not need to descend. He may do it by their saints. Some of the saints they may send to earth. वे अपने कुछ संतों को भेज सकते हैं और खुद ऐसा कर सकते हैं. तो हमें ऐसा कुछ लोगों को लग सकता है कि भगवान ऐसे क्यों अवतरित होते हैं? धर्म तो शाश्वत है और फिर वो ये भी कहते हैं कि संतों की रक्षा के लिए. तो शरीर तो आने जाने वाला है, आगम अपाइनो अनित्य है, तो इस शरीर की रक्षा करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है. हाउ देन वी मेक सेंस ऑफ रीजंस दैट वाई श्री कृष्णा इज स्टेटिंग हियर द बिगेस्ट धर्मा और द biggest righteousness is the soul should engage in such a job that he becomes closer and closer to God. So this is the dharma. So that is what God strengthens by taking avatar. When God is taking avatar, then this link between soul and super soul is established. जैसे भगवान ने कुछ संतों को तो धरती पे भेज दिया उनके साथ ब्रज में गोपियां बनकर रहने के लिए, तो उनको ये प्रसाद रूप में भेजा कि चलो हम लीला करते हैं. लेकिन कुछ ऐसे भी संत थे जो धरती पर अभी उस स्थिति पर भगवान को पाने की स्थिति पर पहुंच रहे थे, तो उनमें भक्ति का अंकुर उत्पन्न करने के लिए, बिकॉज इट इज ए ग्रेटर अपॉर्चुनिटी व्हेन वी सी आवरसेल्व्स एंड आवर लॉर्ड नेक टू नेक. सो हम अपने समीप पाते हैं जब अपने भगवान को, तो हमारे अध्यात्म में, हमारे धर्म में और प्रगति होती है और वे भी संत बन जाते हैं, वे भी इस भव से तर जाते हैं. इसलिए भगवान जो अभी प्रयास करने वाले भक्त हैं उनके लिए और लीलाओं को जोड़ने के लिए वे इस धरती पर पुनः पुनः अवतरित होते हैं. उनको प्रसाद रूप देने के लिए, अधिक आनंदित करने के लिए वे इस धरती पर अवतरित होते हैं. So, when God descends in the world, He reveals His divine form, names, virtues, and pastimes. Many of the names are given to Him. Like Madhusudan, Shri Krishna has killed Madhu demon, so name was Madhusudan. Makhanchor, stealing the butter, so Makhanchor. Many of these words. So such names their devotees are giving that our Lord is Makhanchor. So such names are given to him. So many of the pastime, भगवान कई तरीके से लीला करते हैं और लीलाधारी हैं और इस प्रकार से मनोहारी हैं, अपने भक्तों का मन हरने वाले हैं, उनकी भक्ति को बढ़ाने वाले हैं और भक्तों का उत्साहवर्धन और शत्रुओं का मान मर्दन करने के लिए भगवान समय समय पर ऐसा करते हैं. उन्हें अपने भक्तों के लिए ऐसा करने में अच्छा भी लगता है
क्योंकि वो भक्तों के लिए ही जीते हैं। सो भगवान के अवतरित होने का ये कारण अधिक उचित प्रतीत होता है। नाउ लेट मी रिसाइट ए भजन। राम ऐसी करो कृपा, मन में जग जाए जोत तुम्हारी। राम ऐसी करो कृपा, मन में जग जाए जोत तुम्हारी। कृपा याचक खड़ा दुआरे, भिक्षा दे मेरे राम प्यारे। कृपा याचक खड़ा दुआरे, भिक्षा दे मेरे राम प्यारे। चढ़ी रहे नाम खुमारी, राम ऐसी करो कृपा, मन में जग जाए जोत तुम्हारी। मोह माया का मिटे अंधेरा, यह जीवन हो जाए तेरा। मोह माया का मिटे अंधेरा, यह जीवन हो जाए तेरा। गूंजे तान तुम्हारी, राम ऐसी करो कृपा, मन में जग जाए जोत तुम्हारी। भव सागर में डूबी नैया, तेरे बिना अब कौन खेवैया। दीजो पार उतारी, राम ऐसी करो कृपा, मन में जग जाए जोत तुम्हारी। सुरति सबद का मेल मिलाओ, मेरे हृदय कमल खिलाओ। करो भीतर उजियारी, राम ऐसी करो कृपा, मन में जग जाए जोत तुम्हारी। श्री राम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। न तो हम कामये राज्यं, न स्वर्गं न पुनर्भवं। कामये दुःखतप्तानां प्राणिनामार्तनाशनं। त्वदिष्टं भवतु गोविन्द, यदिष्टं भवतु गोविन्द। न तुमदिष्टं पाहि मां रक्ष मां। तेरी इच्छा पूर्ण हो मां, हम सब तेरी शरण में हैं। अपने चरणों की भक्ति दो मां। श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद शिव कुमार, बहुत बहुत प्यार और बड़े सरल तरीके से तीनों श्लोकों की व्याख्या की। अभी तक समझते थे संविधान क्या है, जो शॉर्ट रूप में विधि और उसका बड़ा रूप हो गया संविधान। बहुत बढ़िया और बहुत ही मतलब हमेशा याद रखने वाली चीजें बता देते हैं और बड़ा अच्छा लगता है। और अंगद और राम जी का जो संवाद बताया वो भी बातचीत में बता दिया कि हम शत्रु के साथ कैसा व्यवहार करें। बहुत ही उदाहरण देके समझाया, आनंद आ गया। और ये भगवान ने जन्म क्यों लिया इसके भी रीजन बताए, वो अभी तक मालूम रहते हैं, लेकिन ये सबसे बड़ा रीजन है कि भक्तों को और आनंद देने के लिए, उत्साह देने के लिए भगवान ने जन्म ले लिया। और ये रावण रावण ये सब संत ही हैं, वे भी लीला कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो कोई विपक्ष या शत्रु पक्ष नहीं है। भगवान ने उनको भी उतारा, उनका फिर से उद्धार करके उन्हें वहीं पहुंचा दिया उनका पार्ट पूरा होने पर। तो हमको ऐसा लगता है देखने वाले को कि ये दो पक्ष हैं, लेकिन यही अंतिम दो सिरे फिर से एक हो जाते हैं।
एक हो जाते हैं। यही समत्व इसीलिए भाव है। अवतार लिया भगवान सब कुछ। बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर तरीके से व्याख्या करते हो, आनंद आ गया। जो और रावण आज और हमें लग रहा है लिंक के कुछ गड़बड़ी के कारण अधिक से अधिक लोग जुड़ नहीं